Yeah, one of their breast is removed. A lot of patients start using a breast prosthesis because they have a lot of body image, self esteem issues आते हैं, सिमेट्री नहीं होती है बॉडी के, तो उनको ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस यूज करके अच्छा लगता है. बट एक और फैक्टर होता है कि जब आपका ब्रेस्ट रिमूव होता है तो जो वेट है उसके साथ वो भी रिमूव हो जाता है. तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी जो है डिसबैलेंस हो जाती है, क्योंकि एक तरफ आपके पास वेट है और दूसरी तरफ आपके पास वेट नहीं है. तो जो आपका ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस होता है वो सिर्फ आपकी बॉडी को सिमेट्री नहीं लेके आता, बट आपकी बॉडी को बैलेंस भी करना चाहिए, वरना क्या होगा कि आपके लॉन्ग टर्म में आपका शोल्डर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, स्पाइन के अंदर तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी और एक क्रॉनिक बैक एक शुरू हो जाएगा. बेसिकली आपका आपका पोस्चर खराब हो जाएगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर प्रोस्थेसिस हैज सम वेट इनसाइड इट. Now, some tips to lymphedema patients. सबसे पहले तो ब्रेस्ट कैंसर इन जनरल, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स और सर्वाइवर्स को अंडरवायर्ड ब्राजील पहननी अवॉइड करनी चाहिए एट ऑल. स्पेशली अगर आपका लिम्फेडिमा की प्रॉब्लम है, then you should not wear an underwired brazil. You should not wear very tight clothes on your chest, on your arm always, and not to confuse this with a compression garment. That is a different thing. But आपको थोड़ा आप क्या किस तरीके के ब्राजील पहन रहे हो, you have to be careful about it. Then second is, as I told you, your prosthesis should have some weight. But just after your surgery, after consulting your doctor, of course, you can wear lightweight prosthesis even during your lymphedema. When you're feeling very uncomfortable, you can switch to a lighter weight prosthesis for a shorter period of time. But for long term, you should wear a medium weight or a heavy weight breast prosthesis, just say your body gets balanced. Now there are different kind of breast prosthesis available. There are foam based. फोम बेस्ड जो है सबसे लाइट होते हैं एंड जनरली दे आर टोल्ड टू बी अवॉइडेड बिकॉज दे कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन समटाइम्स टू द पेशेंट्स. Therefore, even if short term, if you want to wear a lightweight breast prosthesis, preferably wear a fabric based lightweight breast prosthesis. Then there are silicone ones also available. ये काफी टाइम से अवेलेबल है और थोड़े, लेकिन थोड़े से ये एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ पेशेंट्स को लगते हैं और थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं. But again, in long term, you can definitely use a silicone based breast prosthesis. And also there are certain fabric based breast prosthesis that are comfortable, as well as they can be worn in shorter term as well as in the longer term. So आप मीडियम वेट के फैब्रिक बेस्ड ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस भी यूज कर सकते हैं. सो कैनफेम जो है, हम लोग मीडियम वेट के ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस भी बनाते हैं, लाइट वेट के भी बनाते हैं. दीज कम इन वेरियस शेप्स एंड कलर्स एंड वी इवन मेक स्पेशल पॉकेटेड mastectomy bra. Apart from that, the other services that we are providing, जो एकदम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. वी हेल्प पेशेंट्स गेट कनेक्टेड टू पीयर सपोर्ट ग्रुप्स. हम लोगों के खुद के भी पीयर सपोर्ट ग्रुप्स हैं, एंड इफ यू वांट टू जॉइन अस एज अ पीयर काउंसलर, then we can provide you training, and then you can help other breast cancer patients and breast cancer survivors who are suffering a similar journey as you did. You can help them with your experience after getting a little bit of training from our side, which would not cost you anything. Secondly, the other organization called Win Over Cancer, they help breast cancer patients, actually all cancer patients and cancer survivors, to get skill development training, and then they also help them to get back into the job market, to get back into employment. And if they want to start a business, then with the help of our network, we also provide them some kind of guidance upon how you can start your own businesses and everything. So if you are a breast cancer patient or a breast cancer survivor, you can reach out to us. We can help you out by connecting you to other breast cancer patients, other peer counselors, and even sometimes doctors. And of course, in any other way, if you want our help. Thank you. It was great. Today I was very fortunate to talk to Navneet, Dr. Seema Goyal, Dr. Pendarkar sir, Dr. Sanjay, my friend, Dr. Vinita, Anna, and Nirav Maharaja. And we are having good knowledge from Akriti also. Now I would like to request Dr. Rajesh Sharma. I call him Rajesh. Rajesh is a good friend and he is a managing trustee of Manage Health. Now I have to request him that why not we create a second program where we give them complete information about rehab and vocational guidance. But I cannot forget Dr. Seema Goyal. She has to be all the time on board for any breast awareness program, rehab, and anything and everything about that. And I would love to have Anna, but Anna, you have to learn Hindi. You know, you are a Mallu, I know, but you are a very, very intelligent physio.
I know that you are very busy physio, but still you have to spare some time for the people of this country and those who have survived and fighting cancer. Once again, thanks God for allowing us to do this wonderful program. Once again, thank you, Rajesh, and all faculty members. Thank you very much. बोलिए मैडम, आपको कुछ बोलना है, विनीता मैडम? सर, मैं ये कह रही थी कि नेक्स्ट टाइम ना प्रैक्टिकली डॉक्टर नवनीत को और डॉक्टर अन्ना को बोलते हैं कि सब लोगों को सिखाएंगे कि कैसे करना है एक्सरसाइजेस और ड्रेनेज प्रोसीजर्स, ये सब चीजें, ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो प्रैक्टिकली सीख सके. ठीक है. I mean, Anna, you and Navneet should create some sort of a small videos, you know. So that would be good, because most of us who do not understand, you know, might not know how exactly, and then with specific points, you know. So that becomes easy. They can put that tape at home and they can see and do it. मैम, आप कुछ कहना चाह रही थी? डॉक्टर सीमा, आप अनम्यूट करें. आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं बस यही कहना चाह रही थी कि मेरे को आज की वर्कशॉप में एक तो इन्होंने जो टेप्स के बारे में बताया वो मुझे भी नहीं मालूम है. तो मुझे नहीं मालूम है तो कितने सर्वाइवर्स को पता होगा? आई डाउट इट. लिम्फेडीमा तो अच्छा खासा रैम्पेंट है. मैं जब वर्कशॉप्स में जाती हूँ तो कईयों के हाथ में अच्छा खासा लिम्फेडीमा होता है. तो अब ऐसा कुछ हमें सिखाएंगे तो जब मुझे एम्पावर करेंगे तो मैं आगे भी लोगों को एम्पावर कर सकती हूँ. व्हाट आई मेंट टू से इज कि कितना नॉलेज डेफिसिट है मुझे नहीं मालूम. आई हैव नो आईडिया. एंड देन यू नो देयर इज अनदर थिंग. आप सर्जन है डॉक्टर पटेल सर. नेट पे जब मैं देखती हूँ तो दे से कि वो लिम्फेटिक चैनल्स को वीनस चैनल के साथ एस्टेमोसिस कर देते हैं. भाई as per my study, जो मैं तो वैसे dental surgeon हूँ, I am not even an MBBS, but what I have studied, that should be a very good option. Why do you not talk about it? Why you are not doing it? Why? Where is it available? I do not know. मैडम, नीरव है ना, कोचिन में पढ़ा है. हाँ मैडम, it is very widely available in our country and many centers are actually performing it. Actually मैडम, नीरव है ना, MCH प्लास्टिक सर्जरी है, उसका थीसिस, MCH का थीसिस लिम्फेडिमा था. उसको हमने उसलिए यहाँ बुलाया है कि he is an expert in doing it. बस अब नीरव, you are going to be another on my friend list. Sure madam, I'll be very glad. Sure, definitely. और आज हम लोग प्रार्थना करेंगे कि डॉक्टर सीमा को भगवान 100 साल जियाए और हजारों और लाखों लोगों का अच्छा काम करे. वो क्वालिटी लाइफ चाहिए, लंबी लाइफ नहीं चाहिए, क्वालिटी लाइफ. अरे मैडम, जो मुफ्त में मिलता है सब ले लेने का इंडियन है. बहुत अच्छा लगा. सेकंड, थैंक यू राजेश. सर एक पॉइंट और. हाँ जी मैडम. सर एक पॉइंट और, स्कार मोबिलाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे. स्कार मोबिलाइजेशन के बारे में भी. स्कार मोबिलाइजेशन. यस, नीरव. सर्वाइवर्स ने. हाँ, तो उसके बारे में भी बात करना जरूरी है. मतलब मैंने जब से सीखा है तब से मैं लोगों को सिखाने लगी हूँ. हाँ. मैंने भी एक पेशेंट से ही सीखा था, अब मैं सिखाती हूँ, तो इम्पोर्टेंट है वो भी. एक्चुअली मैडम क्या होता है, जब हम लोग सर्जरी में लगते हैं ना, मानी जब पेशेंट कैंसर का आता है तो उसके दिमाग में पहला जीना होता है, तो हमारा दिमाग भी ऐसा हो जाता है, हम लोग साइड को देखते ही नहीं है. एंड बिलीव मी, फॉर ऑल द पेशेंट्स व्हेन आई एक्सप्लेन देम एवरीथिंग, they are surprised why the hell I am telling this. क्योंकि जब हम लोग जेनेटिव यूरिनरी ट्रैक्ट ट्रीट करते हैं, हम ब्रेस्ट ट्रीट करते हैं, हम टंग ट्रीट करते हैं, तो हमको बताना पड़ता है कि मोबिलिटी क्या चीज होती है. तो अनफॉर्चुनेटली कोई बताता नहीं है. तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि नाउ एज अ सेंसिबल क्लिनिशियन एंड ऑन्कोलॉजिस्ट, वी शुड कंपेल आवर अथॉरिटी that they must have a counselor in front as a front desk guys, and they should have rehab guys, and they should start rehab studios. क्योंकि 5 साल के बाद हमको ऐसा लगता है साले जी तो गए, बट ऐसा जीने भी क्या है. तो अच्छा नहीं लगता है ना. आई फील सो बैड. बिमला जी की तबीयत में थी नरमाई, लेने चली पर्ची में लिखी डॉक्टर की दवाई. दवा डोज से दवा लेते ही एक बात दिमाग में आई, पिछली बार दूसरी दवाई की दुकान पर तो ये दवा 200 रुपए की आई, पर इस दुकान पर इसकी रेट 80 रुपए ही लगाई. सोचा सही भी है या नहीं ये दवाई.
अपनी शंका दुकानदार को बताई। दुकान वाले भैया ने समझाया, दवा सही है या नहीं इसका पता लगाना बिल्कुल है आसान। बस 4 टिक ही तो लगाने हैं। आपको सिर्फ ये मिलाना है। दोनों दवाइयों के सॉल्ट एक जैसे हैं ना, दोनों दवाओं के डोज की मात्रा, दोनों दवाओं का फॉर्म। दवा का फॉर्म यानी दवाई टैबलेट या कैप्सूल है, सिरप है या फिर इंजेक्शन। अच्छा। चौथा है दोनों दवाइयों के सॉल्ट का रिलीज पैटर्न एक ही है ना। रिलीज पैटर्न ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये भी दवाई पर लिखा होता है। SR यानी सस्टेन रिलीज और ER यानी एक्सटेंडेड रिलीज। अगर चारों टिक सही है तो समझो दवा भी है एकदम सही। समझ गए ना? बिल्कुल समझ गई। दवा वही, दाम सही। दवा दोस्त से घर बैठे दवाइयाँ मंगवाइए।